इट्स प्रियंका। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आवर फेवरेट सब्जेक्ट, यस एब्सोल्युटली राइट, फिजिक्स। सो जब हम क्लास 11th एंटर करते हैं, वी आर टोल्ड बाय आवर टीचर्स, आवर सीनियर्स दैट फिजिक्स वुड बी द टफेस्ट, और हम यही माइंडसेट लेकर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी बेसिक एंड आवर कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई, बट जैसे जैसे वी मूव फॉरवर्ड our confidence level drops because things get tricky and difficult, and guess what, we think physics to apne bas ki nahi hai. So today I am going to share some tips how you can avoid those mistakes, start liking physics and improve your score. Also I'll be briefing first 7 chapters of class 11th physics so you can have an overview. But before we start, make sure you hit the subscribe, like, share and comment. Let's get started. As we all know, physics is all about practice and NCERT is very important. अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स की NCERT कौन करता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं देन प्रैक्टिसिंग NCERT's न्यूमेरिकल्स कैन गिव योर कॉन्फिडेंस. एंड उसके अलावा जो उसकी एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं, इट हैज़ सम क्वेश्चंस विच आर ऑफ नीट लेवल, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस योर NCERT. एंड उसके अलावा सिर्फ NCERT नहीं करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर कोचिंग मटीरियल और वट एवर बुक्स यू आर यूजिंग, बट डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन टू मैनी बुक्स और डोंट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाई लेवल बुक्स लाइक HC वर्मा विदाउट नोइंग योर बेसिक्स. एंड मेक श्योर दैट किसी के प्रेशर में आके किसी को कॉपी करके यू डोंट स्टार्ट यूजिंग दोज हाई लेवल बुक्स बिकॉज you will only lose your confidence. Other than that, previous 10 years question papers are very important, so make sure you do that too. Now, physics is the most time-consuming subject, both while practicing and even while taking your exam. So make sure you work in a time limit, like first 45 questions in 1 hour, 30 minutes or 15 minutes, and make sure you be in that time limit. And this will definitely help you in managing your time in exam as well. So now I'll be briefing some chapters, starting with the first one. There are hardly any questions asked from this, so moving to the second one, units and dimensions. हम सब इस चैप्टर को बहुत लाइटली ले लेते हैं बिकॉज ये ईजी होता है, बट सी इफ़ यू वॉन्ट रिवाइज थिंग्स देन एग्जाम स्ट्रेस में यू आर गोइंग टू फॉरगेट इवन द सिंपलेस्ट फॉर्मूलाज. सो मेक श्योर you keep revising things. This year 3 questions were asked from this chapter, so it is kind of important, and you just need to remember significant figures, errors, dimension वाला जो concept होता है, and there's nothing much to do. So I'll be taking motion in straight line and motion in plane together. So motion in straight line में आपको 3 kinetic equations learn करनी है जो हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, and try their applications. जितनी भी variety हैं उनकी, जितनी भी problems हैं, try all those yourself. And जो 1-2 ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व देम. So let's take a question from this chapter, and this was asked in AIPMT 2015. V equals to, Vx का function है equals to beta x to the power minus 2n. Okay, this is given, and what are they asking? Acceleration of the particle as a function of x is given by. So what will be the acceleration of the particle? And you can see the options. So yeah, let's try this question. So we know a very simple relation, A equals to dv by dt, but here it is in terms of time, and equation में हमें x के टर्म्स में दे रखा है, so हमें इसे x के टर्म्स में लाना पड़ेगा. So what do we do? हम इसे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. Now see, dv by dx क्या होता है, सॉरी dx by dt क्या होता है, v इंटू dv बाय dx. हमने क्या कर लिया, dx बाय dt को अलग ले लिया और बचा dv बाय dx. नाउ इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लेंगे. सो v की वैल्यू हमें पता है बीटा x टू द पावर माइनस 2n, एंड जस्ट एज आई टोल्ड यू कि अभी तक आपको सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए. यहाँ पे हमको इसको डिफरेंशिएट करना है. सो हम क्या करेंगे, बीटा कॉन्स्टेंट और जो माइनस 2n होगा आगे आ जाएगा साइन के साथ, x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1. ऐसे ही लिखते हैं हम. x टू द पावर n का अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, n x टू द पावर n माइनस 1, वही करा है हमने. सो सी
ये हम -2n आगे लिख देंगे. साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने साइन में गड़बड़ कर दी यू कैन लूज योर मार्क्स. बीटा स्क्वायर x to the power -4n - 1. दिस इज योर आंसर. नाउ कमिंग टू मोशन इन प्लेन. ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमारे नंबर ऑफ फॉर्मूलाज दे कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो फॉर दैट आई हैव मेड दीज शीट्स. सो यू कैन सी what I used to do was whenever my teacher used to teach me any chapter in physics, जिस दिन भी वो ख़त्म होता था मैं उसी दिन A4 शीट लेके I used to write all the formulas in a concise form, and उसको आप सोने से पहले या फिर मॉर्निंग में you can just look at it, and इससे क्या होता है that you learn all the formulas very easily, and when it comes to applying them it is very easy for you because वो बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक हो जाता है उसी टाइम पे. सो कमिंग टू दिस चैप्टर, इसमें आपको कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल यू विल गेट बोथ द प्रॉब्लम्स. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस रेनमैन प्रॉब्लम्स, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम एंड ड्रिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, एंड देयर इज नथिंग मच टू डू इन दैट. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT prelims 2012. सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट range and height are equal. Now you don't have to apply those big formulas, you just have to remember this tiny formula, r by h equals to 4 cot theta. Okay, just learn this. Now इसको आप simplify करके 4 upon tan theta भी लिख सकते हैं because cot theta is equals to 1 by tan theta. Now r and h are equal, so they will get cancelled and 1 equals to 4 upon tan theta. Theta will be equal to tan inverse 4. Easy, right? So you just have to remember this small formula, okay? Now I'm taking another question which was asked in NEET 2019, and the question says speed of swimmer in still water is 20 meter per second. So we'll write, just first of all you have to make sure that you write everything which is given in the question so that becomes clear to you. Speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east. So let's draw a diagram. So you just have to take the directions. Now the speed of water or river is 10 meter per second. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along shortest path angle at which he should make his stroke with respect to north is given by. So the question is saying कि जो स्विमर है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है साउथ बैंक से और उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है. सो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कौन सा वाला होगा? ये वाला, ठीक. सो शॉर्टेस्ट पाथ ये परपेंडिकुलर वाला होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर. सो नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपको इस तरफ को जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, और जो रिवर फ्लो कर रही है वो इधर को फ्लो कर रही है, सो आप स्ट्रोक्स किस डायरेक्शन में मारेंगे? इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब आप इधर को स्ट्रोक्स मार रहे होंगे रिवर आपको अपने आप इधर 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 ले जाती जाएगी. ठीक है. सो अब मैं इसके जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो इस डायरेक्शन में है, हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देते हैं. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि वो कितने एंगल पे स्ट्रोक्स मारेगा फ्रॉम नॉर्थ. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज वो पूछ रहा है नॉर्थ से. ठीक है, अगर आपने यहाँ से निकाल दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. सो हम थीटा यही ले लेते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? VS cos थीटा, और ये हो जाएगा VS sin थीटा. नाउ जस्ट इमेजिन दिस कि अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो आपकी पूरी जो वेलोसिटी होगी वो इस साइड होगी. सो बोथ दीज वेलोसिटीज, जो स्विमर VS sin थीटा है एंड VR है, वो दोनों कैंसिल हो जानी चाहिए. सो बोथ ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल. सो दैट इज द कैच हियर. आपको बस इन दोनों को इक्वल करना है. अब देखो हमें पता है VS इज 20 sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10. सो sin थीटा क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट. सो जो आंसर होगा इसका होगा वो होगा 30 डिग्री वेस्ट. 30 डिग्री वेस्ट. ओके. I have a similar question. You can try it yourself. Laws of motion is a very important chapter because it is co-related to your next two chapters. और यही एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट फिजिक्स से हटने लग जाता है, बिकॉज दिस हैपेंड विद मी टू व्हेन आई वाज इन क्लास 11. So make sure that the only solution you have for this is that you understand your notes completely.
learn on the formulas. And जब आप questions practice कर रहे हो, then you have to imagine the question which is asked. जैसे कि फोर्स कहाँ से लग रहा है, फ्रिक्शन किधर को जनरेट होगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो एक बार आप इस हैबिट में आ जाएंगे एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, उसके बाद आई थिंक यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, and this is especially for students who think that NCERT, physics की NCERT is not important. This question was asked in NEET 2019, like a very similar question was asked in NEET 2019 with the same concepts and same formulas. So let's take it. Let's draw the diagram. Okay, so I'm taking this man को मैं block की तरह बना देती हूँ because my diagram skills are very bad. So yeah, mass of the man is 70 kg and ये नीचे mg लगा रहा होगा. Okay, now it is this hollow cylindrical drum is rotating with velocity 200 revolution per minute, and then it says the coefficient of friction between wall and its clothing is 0.15. So the mu is 0.15. What is the minimum rotational speed of cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly removed? So question में कह रहे हैं कि हमने फ्लोर को रिमूव कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि टेंडेंसी क्या होगी कि मैन नीचे गिर जाएगा, बट बिकॉज द हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम इज रोटेटिंग अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस, तो क्या होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा. तो हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r. और जो नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी. सी नॉर्मल यहाँ लगेगा और एक और फोर्स लगेगा जो उसको नीचे गिरने से बचा रहा होगा, वो होगा फ्रिक्शन. ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन किस साइड को लगेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा और फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की तरफ. जो बॉडी है वो नीचे गिरने वाली है, इसलिए फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको गिरने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. ठीक, नाउ सी, अगर उसे गिरने से बचाना है तो फ्रिक्शन को mg से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, ज्यादा या फिर इक्वल टू mg. नाउ अ वेरी बेसिक फॉर्मूला इज फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन. ये आपके फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा. सो फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन. सो हम यहाँ लगा देंगे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन ग्रेटर और इक्वल टू mg. नाउ म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, नॉर्मल को नॉर्मल इज इक्वल्स टू mv²/r. लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने हमें ओमेगा के टर्म्स में पूछा है तो हम इसको ओमेगा में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट करिए और आपका फॉर्मूला बन जाता है m ओमेगा r स्क्वायर. सो म्यू इक्वल्स टू m ओमेगा r स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू mg. राइट, अब क्या होगा, mm कैंसिल हो गया यहाँ से और हमें क्या चाहिए, ओमेगा, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी इसकी स्पीड होनी चाहिए कि वो जो बॉडी है वो नीचे ना गिरे. सो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर. सी, ये mv² था तो यहाँ आना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r. सॉरी, ठीक, ये हटा देंगे. नाउ सी, ओमेगा इक्वल ग्रेटर, तो मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ. जी को आप 9.8 या 10 जो लेना है ले लीजिए, बट क्योंकि यहाँ पे 0.15 है तो ये इजीली कैंसिल हो जाएगा. एंड रेडियस जो हमें दे रखा है वो है 3 मीटर. सो मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ. सो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 5 सेकेंड इनवर्स. Work, energy and power is all about learning formulas and then applying them. And जो collision वाला topic था उसमें there are a lot of formulas and I was not able to retain them. Again, the solution is you make those sheets and just learn the formulas. And honestly speaking, laws of motion, work, energy and power and rotation, which is the next chapter, इन तीनों चैप्टर में आई थिंक there is a lot of variety and you will have a hard time practicing those questions, but don't worry, just you can ask your doubts and then solve them again yourself and I think you can cover the chapters. Work, energy and power का जो क्वेश्चन है आई एम टेकिंग इट फ्रॉम NCERT and it is numerical number 6.26. सो जो फिगर है वो है
और ये है आपका ब्लॉक, और जो ब्लॉक का मास दे रखा है दैट इज़ 1 kg, ओके। एंड ये जो थीटा दे रखा है इट इज़ 37 डिग्री। सो मैंने आपको बताया था कि एनएलएम के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट आर को रिलेटेड विद वर्क, एनर्जी एंड रोटेशन। सबसे पहले हम इसमें जो फोर्सेस होंगे वो बना लेते हैं। सो देखो, जो mg होगा दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, mg डाउनवर्ड्स। अब इसके मैं कंपोनेंट्स बना लेती हूँ। एक फोर्स इस साइड को चल रहा होगा और एक इधर। अब जो थीटा होता है वो ये वाला होता है, ठीक। सो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 37 एंड ये वाला हो जाएगा mg cos 37, और ये परपेंडिकुलर टू द बॉडी आपका आ गया नॉर्मल, ठीक। अब देखो जो फ्रिक्शन होता है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आई टोल्ड यू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन, अ बेसिक फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg cos 37 डिग्री। So this is a frictional force. Now the net force acting on this body, mg sin 37 नीचे को लग रहा है और उसको फ्रिक्शन रोकेगा, तभी तो 10 सेंटीमीटर पे जाके वो रुक गया, बिकॉज mg sin 37 नीचे को लग रहा था और ऊपर उसके फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। सो द नेट फोर्स वुड बी mg sin 37 डिग्री माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू mg cos 37, क्योंकि फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ऑल राइट, नाउ सी, जो वर्क डन बाय दिस बॉडी होगा वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि जो स्प्रिंग है वही उसको नीचे जाने में हेल्प कर रहा है। सो जो वर्क डन बाय द बॉडी एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। नाउ आई पुट द वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे mg कॉमन ले रही हूँ, फोर्स की वैल्यू थी mg sin 37 डिग्री माइनस म्यू mg cos 37 डिग्री। सो यहाँ पे मैंने mg कॉमन ले लिया, माइनस म्यू cos 37 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ, एंड k की वैल्यू हमें दे रखी है 100 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर x भी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इनटू x स्क्वायर। नाउ x से x कैंसिल, और उन्होंने हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑलरेडी 10 दे रखी है, हमें फाइंड करना है म्यू की वैल्यू। सो आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड आफ्टर दैट आपकी जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 0.12। दिस विल बी योर आंसर। द लास्ट चैप्टर फॉर टुडे इज रोटेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज 2018 में 4 questions were asked from this chapter. And we all know that this chapter is filled with formulas. So again I have these sheets, और इसमें मुझे 2 sheets बनानी पड़ी थी, but this makes your work easier and notes को बार बार पलटने से अच्छा you can just have them and they are very easy. So इसमें you have to learn center of mass, moment of inertia, rotational kinetic energy, total kinetic energy, and all those things, angular momentum, torque, and the list goes on. So just remember you should have all the formulas on your tips and just practice more and more questions. ज़्यादा tough question नहीं पूछे जाते हैं नीट में, so don't worry about that. And if you are not able to solve questions, just don't worry. आप गूगल पर जाइए, ask your teachers, and then practice the questions yourself. Don't just keep the doubt to yourself और टीचर को दे दिया and टीचर ने solve करके दिखा दिया. Don't do that. After you ask your teacher and your teacher answers the doubt, make sure you practice the question again yourself, and that's how you learn. So I'm taking this question from NCERT again and it is numerical number 7.14. So उन्होंने हमें force दे दिया 30 Newton and they are asking us एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। सो सबसे पहले जस्ट रिमेंबर कि अल्फा आपके कौन से फॉर्मूले में आता है। सो द फॉर्मूला इज टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। नाउ इट इज़ अ हॉलो सिलेंडर, सो उसका जो आई होगा दैट विल बी एम आर स्क्वायर, लेकिन अभी हमें टॉर्क की वैल्यू नहीं पता। सो टॉर्क फाइंड करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर क्रॉस एफ। नाउ वी नो द रेडियस, सो द रेडियस इज गिवन 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, एंड फोर्स इज 30 न्यूटन। सो टॉर्क आ जाएगा हमारा 12 न्यूटन मीटर।
ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टॉर्क, और हम पे आई की वैल्यू हो जाएगी mr². सो मास इज गिवन 3 kg, रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें. mr² इंटू अल्फा. So after you solve this, the answer comes out to be 25 second inverse square. And हमें अगर उन्होंने अल्फा दे दिया, so we can easily find acceleration A equals to r alpha. r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर इंटू 25. सो आंसर आ जाएगा आपका 10 meter per second square. So that is it for today. Make sure you hit the subscribe, like, share and comment. I hope this will help you, and I'll be back with the next part of the video very soon. Tada!